Hello students, today we shall do your question answers and exercise portion of your chapter number 1, Tom Whitewashes the Fences. Now, read and understand. A. Answer the following questions orally. Orally मतलब आपको लिख के नहीं, बस बताना है. अगर आपसे कोई पूछे कि orally आंसर दो तो आप बस बताएंगे, लिख के नहीं बताएंगे. Now, number 1. What day was it and how was Tom planning to spend it? कौन सा दिन था and Tom कैसे उसे spend करने की plan कर रहा था? Now, it was a warm, bright Saturday and Tom was planning to go swimming with his friends. How did Tom feel about the job given to him by Aunt Polly? Aunt Polly ने जो Tom को job दिया था उसे उसके बारे में कैसे feeling आ रही थी? Tom felt very disappointed, दुखी था वो, and sad था about the job given to him by Aunt Polly. Next, why did Ben beg Tom to let him whitewash the fence? Tom was begged by Ben to let him whitewash the fence as Tom had told Ben that whitewashing was fun and that he was having fun whitewashing the fence. Number 4. Name two things that Tom owned by the time the fence was whitewashed. Tom whitewashing करा के अपने फ्रेंड से कौन से दो चीजें ऐसे हासिल कर चुका था. Two things that Tom owned by the time he finished whitewashing were 12 marbles and a tin soldier. Pick the correct option. Tom had a holiday on Saturday. Tom had a plan to go for a swim. Tom had to whitewash the fence. Number 4. Aunt Polly gave Tom an apple to eat. आंसर्स आपके लिए दिए गए हैं. आप पहले खुद ट्राई करेंगे फिर आंसर्स देखेंगे. Fill in the blanks with the correct word from the box. Number 1. Tom and his cousin Sid were having a holiday. ये आपके जो टेक्स्ट बुक में है उस हिसाब से आप आंसर्स लिखेंगे. 2. Dash was carrying a bucket to fetch water from the water pump. Jim. 3. A brilliant idea came to Dash mind, Tom's mind. 4. Tom was very dash at getting what he wanted. Clever. Number 5. Aunt Polly was happy to see the fence looking so spotlessly white. Now, number D. Answer the following questions. इसको आपको लिखित में करना है. You have to write the answers for this. What task was given to Tom by Aunt Polly? The task given to Tom by Aunt Polly was to whitewash the fence. हमेशा जब आप question answers लिखते हैं तो beginning part of the answer will be from the question itself. जैसे देखिए, what task was given to Tom by Aunt Polly? The task given to Tom by Aunt Polly was, आप आंसर लिखेंगे. ठीक है. सेकंड देखिए, what clever idea came to Tom's mind? The clever idea that came to Tom's mind was to get the fence whitewashed by his friends. तो आप आंसर शुरू करेंगे क्वेश्चन से ही, थोड़ा बहुत उसका टेंस चेंज होगा. ठीक है. Number 3. Why was there a look of pity on Ben's face? There was a look of pity on Ben's face as he was sad to know that Tom would not be able to come swimming with him. Number 4. What did Tom get before the afternoon was over? Before the afternoon was over, Tom had got 12 marbles, a tin soldier, a key, a dog's collar, the handle of a knife, and 4 segments of an orange. Why was Aunt Polly delighted? Aunt Polly was delighted to see that the job was done perfectly. Now think and answer ये आप खुद करेंगे. How was Tom successful in getting others to do the work for him? अब हम पढ़ेंगे ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस बुक. नाउ ग्रामर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पर पहला चीज हम देख रहे हैं सेंटेंसेस. रीड दीज सेंटेंसेस. पहला वाला है birds fly. Second, birds fly in the sky. Third, birds and aeroplanes fly in the sky. Next, a subject and a predicate. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. A sentence must have a subject and a predicate. पहला चीज तो ये है कि सेंटेंस क्या है. सेंटेंस जब हम कई शब्दों को या वर्ड्स को जोड़ के एक मीनिंगफुल कुछ अर्थ निकलता है उसका, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस. अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. ठीक है. अब सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. When we talk, what we talk about,
एक सेंटेंस में जिसके बारे में जिक्र हो रहा है या वो क्या करने वाला है, क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम सब्जेक्ट मानते हैं। द नेमिंग, ओके। नाउ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन और अ प्रोनाउन। वो एक सिंगुलर मतलब एक नाउन हो सकता है, या प्लूरल नाउन एक से ज्यादा नाउन हो सकता है, या तो वो प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में सर्वनाम समझते हैं वो हो सकता है। The part of a sentence that tells us about the subject is called the predicate. अब सेंटेंस में दो चीजें होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट मानते हैं, और दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमें वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो हम उसे प्रेडिकेट मानते हैं। एंड जो प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना बच्चों, उसमें हमेशा एक वर्ब रहेगा। दैट मीन्स predicate part of the sentence will always have a doing word, कुछ action word होगा उसमें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर birds fly, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है birds एंड fly है आपका predicate। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे birds fly in the sky, किसके बारे में बात कर रहे हैं birds, तो birds हमारा सब्जेक्ट है एंड fly in the sky is your phrase, sorry is your predicate। Birds and aeroplanes fly in the sky, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं birds and aeroplanes, so birds and aeroplanes becomes your subject and fly in the sky becomes your predicate। Next we will study what are phrases and clauses। Read this group of words, saw and left the place, यहाँ पर who saw and left the place, सब्जेक्ट हमारा मिसिंग है, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें पता नहीं है, इसीलिए सब्जेक्ट इज मिसिंग। सेकेंड, विथ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट एंड वर्ब आर मिसिंग। थर्ड, ऑन द कंप्यूटर, यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट एंड वर्ब आर मिसिंग। अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ टू or more words which only conveys a partial meaning is called a phrase। देखिए, conveys a partial meaning मतलब पूरा मीनिंग नहीं समझाता है, उसका अधूरा अर्थ बताता है। ठीक है, वो वाले सेंटेंसेस हम समझते हैं उनको फ्रेज। Unlike a sentence, it does not have a subject and a verb of its own। तो फ्रेज में बच्चों ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, इसलिए क्या उसका अर्थ समझ में आता है नहीं। However, it makes a little more sense than a word। A clause, on the other hand, has a subject and a verb like a sentence, but it often begins with a conjunction। It conveys a fairly good sense। So, फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है? फ्रेज, देखिए ऐसे, फ्रेज मतलब उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं, क्लॉज मतलब उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है। अब फ्रेज जो शब्द है वो स्टार्ट होता है लेटर पी से, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि फ्रेज मतलब पार्शियल, पी भी पार्शियल भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये याद रखेंगे कि फ्रेज मतलब पार्शियल मीनिंग, मीनिंग कंप्लीट नहीं है, क्लॉज मतलब कंप्लीट मीनिंग। तो यही दो डिफरेंसेस आपके हैं, फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है, क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब है। फ्रेज आपका पार्शियल मीनिंग या अधूरा अर्थ बताता है, क्लॉज आपका पूरा मीनिंग बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, नंबर वन, ही इज सिक बट ही इज अटेंडिंग द डेली रिहर्सल्स फॉर द एनुअल डे। यहाँ पर हम देखेंगे, हमने क्या पढ़ा, हमारा जो क्लॉज है वो एक कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स विच जॉइन टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स। यहाँ पर ही इज सिक एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है एंड ही इज अटेंडिंग द डेली रिहर्सल्स फॉर द एनुअल डे दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ रहा है हमारा कंजंक्शन बट। ठीक है, अब हमारा क्लॉज का अंडरस्टैंडिंग ये बताता है कि जो क्लॉज है वो कंजंक्शन के साथ शुरू होता है, तो बट ही इज अटेंडिंग द डेली रिहर्सल्स फॉर द एनुअल डे, ये हमारा हो जाता है क्लॉज। और दूसरा चीज हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें एक सब्जेक्ट भी है जो कि ही है एंड वर्ब भी है जो कि वर्ब है। ठीक है, अटेंडिंग है वर्ब एंड ही है सब्जेक्ट, एंड ये क्लॉज हमारा शुरू हो रहा है कंजंक्शन के साथ, तो बट ही इज अटेंडिंग द डेली रिहर्सल्स फॉर द एनुअल डे हमारा क्लॉज हुआ। ऐसे हम इसको समझेंगे, क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है एंड वर्ब तीनों चीजें हैं। ठीक है, सेकेंड, सीमा फिनिश्ड होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले एंड शी टोल्ड हर मदर दैट शी वुड बी बैक होम बिफोर डिनर। इसमें बच्चों दो कंजंक्शंस है, एंड भी है एंड दैट भी है।
एंड के बाद जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सब्जेक्ट हमारा शी है एंड टोल्ड हमारा वर्ब है। सो एंड शी टोल्ड हर मदर भी एक क्लॉज है। दैट शी वुड बी बैक होम बिफोर डिनर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्लॉज। एंड शी टोल्ड हर मदर दैट शी वुड बी बैक होम बिफोर डिनर। ठीक है, सो इसमें दो कंजंक्शंस है। थर्ड, my grandfather gets tired after his morning walk, so he often sleeps for an hour after। अब so जो है आपका कंजंक्शन है, तो उसके बाद जो सेंटेंस आता है वो हो जाता है हमारा क्लॉज, क्योंकि क्लॉज क्या है बच्चों, जो शुरू होता है कंजंक्शन के साथ। सो यहाँ पर so कंजंक्शन है, so he often sleeps for an hour after that। he सब्जेक्ट भी है एंड sleeps वर्ब भी है। सो ये क्लॉज हमारा पूरा है। In the given sentences, the underlined part of each sentence is called clause। ठीक है, अब एक और एक्सरसाइज करेंगे। A, write S against the group of words that is a sentence, PH against the group that is a phrase, and C against the group of words that is a clause। Don't forget to start the sentence with a capital letter and end it with a full stop। पहला है in the sky। ठीक है, सेकंड है at first। थर्ड, boys play with blocks and battery operated toys, and fourth is in the wardrobe। अब देखिए इन द स्काई ये हमारा फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट है, ना ही वर्ब है, ना ही कंजंक्शन है। सेकंड भी हमारा फ्रेज है। थर्ड जो है हमारा सेंटेंस है, बिकॉज एंड वी विल, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है द सेंटेंस विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, तो बी कैपिटल हो जाता है एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। बॉयज हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, एंड प्ले विद ब्लॉक्स एंड बैटरी ऑपरेटेड टॉयज हमारा प्रेडिकेट हुआ। इसीलिए क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों है, इसीलिए ये सेंटेंस में आएगा। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा। इन द वार्डरोब ये हमारा फ्रेज है, क्योंकि इससे पार्शियल मीनिंग आ रहा है। कौन वार्डरोब में है, क्या कर रहा है वार्डरोब, वार्डरोब मतलब जहाँ पर हम कपड़े रखते हैं। ठीक है, now we will read the different kinds of sentences। We have learnt about different kinds of sentences such as declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences। अगर आपको इसके डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, जहां पर भी किसी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आया, या फिर वो क्वेश्चनिंग वर्ड्स व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हिच, वेयर, व्हेन एंड इज, एम, आर, ऐसे सब वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं, इन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस that can be asked। एक, questions that begin with a WH word, ठीक है, जैसे what, which, why, when। This also includes the word how। दूसरा है questions that begin with an auxiliary verb। Auxiliary verbs क्या है, they are helping verbs। वो main verbs के साथ जुड़ के sentence को और भी meaningful बनाते हैं। And auxiliary verbs के अंडर क्या आते हैं, is, am, are, was, were, has, have, do, etc। ठीक है, question tags which come at the end of statements are not like interrogative sentences। This is because the purpose of using a question tag is not to get any information, but to get the listener's confirmation about the speaker's statement। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो है ना, ये हमें क्वेश्चन टैग कोई इंफॉर्मेशन मांगने के लिए नहीं है। ये बस हमें कि जो सुनने वाला है वो सुन रहा है या नहीं, इस वजह से हमें हेल्प करता है ये क्वेश्चन टैग्स। नाउ वी यूज, ये देखिए रिमेंबर में वी यूज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर जो स्टेटमेंट है उसका अर्थ कुछ पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, एंड अगर एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। शी इज अ गुड टीचर। शी इज अ गुड टीचर क्या समझाता है, पॉजिटिव सेंस में कि वो टीचर हाँ अच्छा पढ़ाती है। इजंट इट, इजंट इट मीन इज नॉट इट। अब इज नॉट जहां पे लग गया वो नेगेटिव हो गया, एंड इज नॉट इट हो गया क्वेश्चन टैग। ठीक है, सो यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगता है। सेकंड में देखिए, ही इज नॉट अ गुड स्पीकर। ही इज नॉट अ गुड स्पीकर हमें ये समझाता है कि ये स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है। इज ही, ये हुआ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है, इज नॉट ही होता तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। ओके, दिस इज द डिफरेंस।
एग्जाम्पल्स देखेंगे. इट्स अ लवली डे. इट्स अ लवली डे मतलब पॉजिटिव मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. इजंट इट, द क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा. इज नॉट इट. टू, you've been, अब isn't it is the short form of is not it. जहां पर not लगता है वो नेगेटिव माना जाता है, तो is not it is a negative question tag. टू, you've मतलब you have been told about the meeting. Haven't you? You have been told about the meeting, ये पॉजिटिव सेंस में है. Have not you, नेगेटिव क्वेश्चन टैग. तो जहां पर भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव लगेगा. जहां पर भी स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव लगेगा. ऐसे आप याद रखिए. B. Now write the correct question tags for the given sentences to change them into questions. You are the daughter of our school's principal. R से बन गया aren't you? She had ice cream yesterday, didn't she? It is pouring heavily, isn't it? My father has left for the airport. Has से हो गया has not he. ठीक है. एंड लास्ट में ध्यान में दीजिए कि सब ये में क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट्स हमारे पॉजिटिव है तो उनके बाद हमारा नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स लगा. नेक्स्ट वी विल गो टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है बच्चों, दे आर यूज्ड टू deal with certain expressions of surprise, anger, excitement, or some other strong emotion. Read these sentences. What a beautiful handwriting! Exclamation mark. How nice of you to have called on us! Exclamation. Remember, we say what a with a singular noun and what with plural nouns. ये बहुत important है. What a जहाँ पर article a आया मतलब singular noun के साथ यूज हो रहा है. What a beautiful handwriting. ठीक है, मतलब एक बच्चे का हैंडराइटिंग को हम प्रेज कर रहे हैं. एंड जहां पर हम व्हाट यूज करेंगे वहां पर हम प्लूरल नाउन्स के साथ ही यूज कर रहे हैं. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑल्सो बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर बट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ये ध्यान में रखेंगे. सी करेंगे अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स. फ्लावर्स, व्हाट, बुके, लवली, ऑफ, अ. अब क्योंकि हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाले सेंटेंसेस है, तो पहले चीज आप ढूंढेंगे कि क्या इसमें व्हाट है. यस व्हाट है, तो द सेंटेंस विल स्टार्ट विथ व्हाट. अब देखेंगे कि क्या हम सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या प्लूरल नाउन के. बुके जो है सिंगुलर है, एक बुके है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स है, लेकिन हम एक बुके के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा नाउन जो है सिंगुलर नाउन है. ठीक है, तो व्हाट अ, क्योंकि हम सिंगुलर नाउन के बारे में बात करें, व्हाट अ लवली बुके ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा. ठीक है, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. ऐसे आप थोड़ा सा यू हैव टू प्रैक्टिस कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस वाले जो वर्ड्स है, ठीक है, उसमें पहले आप ढूंढेंगे कि व्हाट है या नहीं. ठीक है, व्हाट है तो हम लिखेंगे. देखेंगे नेक्स्ट कि अगर वो नाउन जो है हमारा वो सिंगुलर है या प्लूरल है. अगर सिंगुलर है तो उसके बाद हम ए लगाएंगे व्हाट के बाद. व्हाट अ लवली बुके ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, क्योंकि बुके जो और बुके ऑफ फ्लावर्स जो है उसके आगे लगा है एक एडजेक्टिव जो कि डिस्क्राइब कर रहा है बुके ऑफ फ्लावर्स को. ठीक है, सेकंड वाला वैसे देखेंगे, गुड बर्थडे वाज दैट केक सो. अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा दैट केक was so that birthday that birthday cake was so good. नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे, यहाँ पर what है इस सेंटेंस में, so what a mess you have made. नंबर 4, your puppy is so cute. she डन जॉब वंडरफुल हैव जॉब यू. अब इसमें देखिए सिक्स्थ वाला थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन. यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, बाकी के जो वर्ड्स है उसको हम डिलीट कर दें. ठीक है, नंबर 5, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. अगर सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में देयर इज द वर्ड व्हाट, देन स्टार्ट द सेंटेंस विद व्हाट. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस. नेक्स्ट इज स्पेल वेल. ये तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपको. आई हैव गिवन द आंसर्स, यू कैन जस्ट रेफर टू इट. Now, word part. In the group of words given below, one word is different in meaning. Cross this word out. 4 words जो दिए गए हैं हर नंबर में, एक उनमें से अलग है, तो
उनको देखिए, तीनों के मीनिंग सेम होंगे, एक का मीनिंग अलग होगा. सो ट्राई इट ऑन योर ओन, अदरवाइज रेफर टू द आंसर्स गिवन बिलो. नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज थिंग, feather. Second, path, mother. Third, panther, weather. Fourth, think, dose. Fifth, author, leather. Sixth, thimble, wreath. Seventh, myth, smooth. Eight, teeth, other. इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. नेक्स्ट इज डिक्शनरी स्किल्स. Rearrange the following words and phrases in alphabetical order. Use the dictionary to find the meanings, their usage as parts of speech and pronunciation. मैंने नंबर वाइज इसको अरेंज करके आपको दिया है. आप एक डिक्शनरी रख के उसका मीनिंग्स भी लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिखेंगे एंड प्रोनाउंसिएशन में आपको बता देती हूँ. रन इनटू, टेक ऑफ, वाइंड अप, रिसॉर्ट, अपॉलॉजी, applause. ठीक है. नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर टॉम व्हाइट वॉशेस द फेंस. पहले वीडियो में हमने आपके क्वेश्चन आंसर्स किए थे और इसमें हमने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया इंक्लूडिंग द ग्रामर पोर्शन. इफ यू लाइक माय चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए सो दैट आई कैन पोस्ट मोर वीडियोस एंड यू गेट नोटिफाइड अबाउट इट इमीडिएटली. किसी भी और वीडियो या सब्जेक्ट के ऊपर आपको अगर वीडियोस चाहिए, सब्जेक्ट टॉपिक, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए. थैंक यू.